بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ کیسے ایک اللہ والے نے ایک پنڈت کی بیٹی کو چھپکلی بنا دیا۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، غرض کہ ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان مغرور ہو جایا کرتا تھا۔ سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی، وہ سب کے سب کافر تھے، اپنی شان و شوکت اور دولت پہ فخر کرتے تھے، کیونکہ ہر شخص دولت مند تھا، کسی کے پاس بھی روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ وہاں نہریں تھی، باغات تھے، دریا تھے، اور جب اتنا کچھ انسان کے پاس ہو تو مغرور ہو ہی جایا کرتا ہے۔ یہاں کسی انسان کے پاس نہیں بلکہ پوری کی پوری بستی مالدار تھی، سوائے کچھ مسلمان کے چند گھر تھے۔ کافروں کے گھر زیادہ تھے اور مسلمان کے گھر اکے دکے تھے۔ ان کا سردار ایک پنڈت تھا جس کی ایک لوتی بیٹی تھی جسے وہ بے تحاشا چاہتا تھا۔ وہ بیٹی بہت ہی زیادہ انا پرست تھی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا سمجھتی تھی۔ وہاں جو غریب لوگ تھے وہ مسلمان تھے۔ وہ بیٹی عمل کر کے یعنی کالا جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ تنگ تھے، ان کا کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا۔ جب پنڈت کی بیٹی کا علم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بزرگ نے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، اے رب کریم، ہماری نسلیں جو چند ایک یہاں پر بچی ہے ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دوہر کر دیا ہے، کوئی بھی ہمارا مسیحا نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے ایک ایسا مسیحا بھیج دے، نہ کہ وہ جادوگر ہو بلکہ اس جادوگرنی کو بھی ہرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کی دعا قبول فرمائی اور وہاں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ اللہ والے یوں ہی اس بستی میں داخل نہ ہوئے بلکہ ایک دن عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ وہ پنڈت شیر کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلا، بڑی شان سے وہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ اگر وہ پنڈت چاہتا تو اپنے عمل سے اس سانپ کو ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ سانپ بہت ہی طاقتور تھا۔ اس زہریلے سانپ نے قریب آ کر اسے ڈس لیا، وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے وہ جو غلام تھے انہوں نے اپنے سردار کی ایسی حالت دیکھی تو فوری طور پر اسے گھر پہنچایا گیا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو ملک کے بڑے بڑے طبیب اور حکیم بلائے گئے، وہ اپنے ہنر میں بہت ہی ماہر تھے۔ یہ بہت عجیب بات تھی، یہ بہت سی کوششوں کے باوجود زہر نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ زہر تیزی کے ساتھ پنڈت کے شریر میں پھیل رہا تھا، کوئی بھی اس زہر کو نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ پنڈت خود اتنا بڑا عامل تھا، اس کے باوجود وہ اپنا علاج نہیں کر پا رہا تھا، اسے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اتنی طاقت ہونے کے باوجود، اتنا پیسہ روپیہ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے ہنر میں اپنے ماہر حکیم ہونے کے باوجود زہر کو جسم سے باہر نہیں نکال پا رہے تھے۔ اس وقت ایک بزرگ کی شہر میں آمد ہوئی۔ ان اللہ والے کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ ان اللہ والے بزرگ نے اس کے دروازے پہ جا کر گیٹ کھٹکھٹایا۔ بڑے بڑے درباری کھڑے ہوئے تھے کہ کیا بات ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، تمہیں کیسے پتا؟ تم تو مجھے اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک کبھی دیکھا نہیں۔ تو ان اللہ والے نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا۔
तो दरबारियों ने कहा, अरे भाई तुम कौन हो? तो उन अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूँ, मैं इनका इलाज करने आया हूँ। उन दरबारियों ने जब उन अल्लाह वाले की हालत देखी तो वो जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और हुलिये से ही गरीब लग रहे थे। तो दरबारियों ने कहा, अरे भाई तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? मुल्क भर के तबीब और हकीम बुलाए गए और पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार के पास। तो उन अल्लाह वाले ने कहा, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। तो गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम फिर अंदर से इजाज़त लेकर आते हैं। वो अंदर आए और पंडित की बेटी से कहा कि मालकिन, कि एक गरीब आया है और हुलिये से एक फ़कीर लगता है और कहता है कि मैं पंडित का इलाज कर दूंगा। जो जहर तेजी से फैलता जा रहा है मैं उसको निकाल फेंक दूंगा। वो कहने लगी, ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। जब वो अल्लाह वाले अंदर आए तो देखा कि पंडित जहर से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। वो अल्लाह वाले उस पंडित के पैर की तरफ आए जहां उस सांप ने काटा था। उन अल्लाह वाले ने वहां थूक दिया और फौरी तौर पर वहां से भाग गए। पंडित के सारे साथी और उसकी बेटी हैरान हुए कि कौन दीवाना था। कमरे में आया और उस जगह पर थूक कर भाग गया जिस जगह सांप ने काटा था, और तो और उसको कोई पकड़ भी ना सका। पंडित की बेटी गुस्से में आ गई और कहने लगी, ये तो बेदबी है और उसने गुस्ताखी की है यहाँ के सरदार के साथ। चलो कोई बात नहीं, इस थूक को सफा करो, मैं अपने अमल से उसको जानवर बना देती हूँ। और जैसे ही उसका थूक साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा, पंडित की नीली हुई टांग से थूक साफ करने लगा। वो हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से सांप के डसे हुए पर अच्छी तरह मल दिया। तो उसकी बेटी कहने लगी कि आप क्या कर रहे हैं? उस दीवाने ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया और आप उस थूक को मल रहे हैं। और उसने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोक दिया और कहा कि रुको एक मिनट। जैसे ही उस पंडित की टांग पर थूक को मला गया और जहर का असर फौरी तौर पर खत्म हो गया और जो टांग कटने की हालत पे थी वो पहले की तरह हो गई। जो टांग नीली हो गई थी वो असल रंग पर आ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता पंडित होश में आने लगा। जैसे ही पंडित होश में आया तो उसे फकीर के थूक के किस्से का पता चला। तो उसने कहा, अरे भाई वो तो हमारा मसीहा है। लोगों ने उसे दीवाना कहा और बेइज्जत करा। वो थूक कर यहाँ से कैसे गायब हो जाएगा? अरे जाओ जाओ उसे लेकर आओ, उसने तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम उसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। पंडित के कहने पर उसके सारे दरबारी उन अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकले। वो चारों तरफ फैल गए, कहीं भी उन बुजुर्ग को ना देखा। फिर जब जंगल में दाखिल हुए, वहाँ एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उन अल्लाह वाले को देख रहे थे। ये क्या कर रहा है? ये किस तरह की इबादत कर रहा है? हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं, ये तो न जाने किसको सजदा कर रहा है। तो पंडित का हुक्म था तो फौरी तौर पर उन बुजुर्ग को पकड़ा गया और पंडित के सामने पेश किया गया। तो पंडित ने कहा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। मेरे लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। गुनाहगारों की आंखें आपको पहचान न सकी। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप मेरी तरफ से कीमती पोशाक और लिबास, ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। तो उन बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उस पंडित की तरफ देखा और कहा कि घोड़ा और लिबास बहुत कीमती है, कि मैं ये लिबास पहनकर घोड़े के लिए घास काटूंगा, क्या अच्छा लगूंगा? तो पंडित ने कहा कि आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ साथ खिदमत गुजार भी दिए जाएंगे, यानी नौकर चाकर भी आपको दिए जाएंगे। वो बुजुर्ग बोले कि इतना माल और इतनी दौलत, इतने नौकरों के साथ अपनी राजगाह में अकेला रहूंगा
तो पंडित बोला, हुजूर आप परेशान न हो, ये मेरी बेटी है, आपके सामने है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है कि मेरी बेटी जिसे आपने देख लिया है उसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, कि एक शर्त है, जो कुछ भी मैं आपको दे रहा हूँ उसके लिए आपको अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा। मेरे मुलाजिमों ने आपको इबादत करते हुए देखा है। जहाँ तक हमारी मालूमात है हम तो बुतों के आगे सजदा करते हैं, हम अपनी उन मूर्तियों की इबादत करते हैं, और जिसको आप सजदा कर रहे थे वो तो आपका खुदा है ना। मेरा मतलब ये है कि आप मुसलमान हैं ना, और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सब कुछ ये ले लें और अपने मजहब को छोड़ दें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? उन अल्लाह वालों ने कहा कि आप मुझे एक बात बताइए कि आप मुझे सब कुछ दे रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी है कि मेरी बहुत सी औलादें हों, आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। मुझे बताइए, अगर इन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो रोना किसको पड़ेगा? तो पंडित ने जवाब दिया कि हुजूर ऐसा कुछ हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। तो अल्लाह वाले मुस्कुराकर बोले कि सारा माल मुझे लेकर रोना पड़ेगा। तो पंडित जी ये अपना घोड़ा और कीमती लिबास और अपनी बेटी और ये आलीशान घर अपने पास ही रखे कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। अगर मुझे सारी नेमतें लेकर अपना मज़हब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपना मज़हब नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या मैं उस दिन को छोड़कर आपके पास चला आऊँ इन चंद पैसों के लिए, दुनिया की चीज़ों के लिए? मुझे तो आखिरत की ज़िंदगी चाहिए और ये सारी नेमतें तो मुझे मिल ही जाएगी। इसीलिए मैं अपने मज़हब से बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा है वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। तो पंडित ने कहा, क्या मकसद है आपका? तो उन बुजुर्ग ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए मसीहा बनकर आया हूँ। यह कहकर वो बुजुर्ग जाने लगे। पंडित ने उन बुजुर्ग को रुकने के लिए कहा और कहने लगा, मैंने माल देकर आजमाया तुमको, हर तरह से जांच लिया, तुम अपने मजहब को छोड़ने के लिए राजी ना हुए। अगर तुम यही करने आए हो तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं है। क्या तुम ये नहीं जानते हो कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है, तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। इसने जानवर तो कमज़ोर लोगों को बनाया है, इससे कहो कि मुझे जानवर बना के दिखाए तो मैं फिर इसका जादू मानूंगा। इससे पहले पंडित अपनी बेटी को मशवरा देता कि जाओ बेटी इस पर वार करो। उससे पहले अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई, और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी और वहाँ पे जितने इंसान खड़े थे सबसे ऊंचा कद उसका था। वो छिपकली उन अल्लाह वाले के पास आने लगी, आहिस्ता आहिस्ता अपना जहर उगलना चाहती थी। अल्लाह वाले जानते थे कि वो क्या करने वाली है। उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक क्या था? तेजाब था, जिससे उसका आधा चेहरा जल गया। चेहरा जलकर काला हो गया कि करीब था कि पूरा उसका जिस्म जलकर खाक हो जाए। और पंडित भागता हुआ आया और उनके कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, हजरत के इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने सच में आपको बहुत कमज़ोर समझा, आपको आपके मज़हब से हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। तो उन अल्लाह वाले ने कहा कि हम ज़बरदस्ती अपने दीन में शामिल करने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि तुम लोग जो हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म करते हो, हम उस जुल्म को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है और उसको असल हालत में लाने के लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा। तो पंडित कहने लगा, हाँ हाँ मेरी बेटी असल हालत में आएगी, वो किसी पर भी जुल्म नहीं करेगी, मैं उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ।
میری بیٹی نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے، آئندہ یہ کوئی کالا جادو، کوئی ایسا گندا عمل نہیں کرے گی اور کسی بھی مسلمان پر کوئی سختی نہیں کرے گی، مگر آپ دوبارہ سے اسے انسان بنا دیں۔ تو اللہ والے نے اس چھپکلی پر پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی اور ان اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو بہت کمزور سمجھا۔ جب تک آپ یہاں رہے میرے لیے ایک فقیر انسان تھے، آپ اپنے لباس اور حلیے سے ایک دیوانے فقیر لگ رہے تھے۔ میرے باپ کی ٹانگ کا زہر آپ نے ہٹایا، اس کے باوجود میں آپ کی جان کی دشمن بن گئی اور میں چاہتی تھی کہ میں آپ سے بدلہ لوں، مگر مجھے تو خود عذاب مل گیا۔ اور وہ کہنے لگی کہ میں اپنے باپ کے ساتھ، آپ کے دست مبارک کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اور میں یہ وعدہ کرتی ہوں آئندہ اس بستی میں کوئی بھی کافر کسی مسلمان کو نہیں ستائے گا اور آپس میں مل جل کر بھائی بھائی رہیں گے اور سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر ایک پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا، اور پھر پنڈت نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ کل تک جو اپنے اوپر غرور کرتے تھے وہ آج اچھائی کا پیکج بن گئے، ایک اللہ والے کی کرامت سے۔ سبحان اللہ۔